Good morning, everyone. Am I audible to all? Ji sir, am I audible? Okay. So let's start the session. Good morning, one and all present here. Honorable Chairman sir, Vice Chairman sir, Secretary sir, Director sir, Administrator ma'am, faculties and non-teaching staff of ISM Patna, and my dear students. It gives me immense pleasure in welcoming all of you in the expert talk on microservices, a technology trend in 2023. I am highly honored to take this opportunity on behalf of ISM Patna to welcome you all in Expert Talk. I would also like to express my gratitude to our esteemed speaker, Mohammad Tanveer Alam, who have accepted our invitation for this session. The main goal of the talk is to aware you all on the concept of microservices and its implementation in the industry, to make understand how to survive in the industry with exploring latest trends and technologies. During this session, we will discuss about the characteristics and architecture of microservices, its evolution, applications, and its benefits. Before starting the session, first of all, I would like to give a brief introduction to our speaker, Mohammad Tanveer Alam. Mohammad Tanveer is currently associated as a senior software developer at Cognizant Solutions. He has more than 5 years of experience in the software development using Core Java, J2EE, Struts, Spring, MVC, Spring Boot, microservices, Hibernate, JPA, JSP, Java Servlet, Oracle 10G, and many other related technologies. He has worked on different projects such as National Stock Exchange, Express Cargo Clearance System, Administrative Management System of ATP at NILET, and Simulation of ATM System. I welcome you, sir. So, first of all, what is microservices? Basically, it is also known as the microservice architecture. It is an architectural style that is an applications as a collection of services which includes independently deployable, loosely coupled, organized around business capabilities, owned by a small team. The microservice architecture enables an organization to deliver large, complex applications rapidly, reliably, and sustainably for competing and winning in today's world. So, before taking so much time, I request Mohammad Tanveer sir to please continue. Tanveer sir, am I audible to you? Tanveer sir? Hello, Yes, yes, you are audible. I'm audible now. Yes, yes, you are. Is clear voice? Yes. Yes. Okay, thank you.
So thank you, Jaya, for giving me the time for expressing my view on the topic which I selected today. Okay, hi, students, OSM. Okay, so as already introduced by Jaya regarding my regarding me. Okay, so I am working as a software developer in Cognizant currently, and I have a total around 5+ years of experience in Java technology mainly. And apart from that, I have worked on various projects in other companies like Wipro and Cognizant, like National Stock Exchange of India, Express Cargo. And currently, I am working with a model and client of one of the US project, which I am associated with. So today, just I am going to express my views on the technology microservices. Okay, the microservices which is in trending now, and it is used in most of the companies and most of the corporates. They are using it for the better enhancement of the project and their comfortability. Okay, so before going into the deep dive into the microservices, I would like to express some points on my monolithic architecture, which most of the companies are means they are developing their project earlier, and they are means some are also developing a new, and also most of the projects are based on that monolithic architecture. Okay, so first of all, what is monolithic architecture? Yeah, you must know it, then only you can understand uh, what is microservices and why do we use why will we use use it, and what is the benefits of microservices. Until unless you do not understand what is monolithic architecture, then you cannot understand. Okay, so let's start with monolithic architecture. So I have prepared some PPT before showing express on the topics. I would like to share my screen. Okay. uh, my screen is visible to all of you. Please let me know. Yes, it is. Okay. Okay. So what is monolithic architecture? You must know it. So first of all, earlier what company used to do, they before developing just means the project, we have to follow some standardization. Okay, what is the requirement of the project, and what team size is required, and what technology we have to work, and and how we will proceed with the development of the project. Okay, so first of all, we have to follow the SRS, software requirement specification, for developing the project. And after that, we follow the model like waterfall model, agile model, whatever it is. So in monolithic architecture, what happens, where suppose you develop a website or any project, whatever you have been assigned uh, in your college, or in your whatever you want to make in the project. Okay, so you have chosen your technology according to your requirement. You have to chosen the like DB. You have chosen the deployment tools, etc. All these things. So what you do, you start coding the developing the project. Okay, and whatever you had developed different modules. Like first of all, I will take example of like any e-commerce application you are going to develop. Okay, so in e-commerce application, you have various modules. Your various modules will be there. Suppose you take any example of Flipkart. So you have different types of modules. User modules are there. User information is there. Like payment module is there. Like for product services are there.
products and payment services, product services, user services. These are different modules you are going to develop for the e-commerce application. Okay, not e-commerce. Suppose you take a very small website you are going to develop. So you must have different kind of modules you are going to introduce in the project. Okay, so that module must be have understanding that what you are going to develop. Okay, so after developing the modules, after developing all the modules, what you do, you keep all the code base, all the code base in a single unit. Suppose you develop a code base inside a tool like Eclipse. You might have used Eclipse tool for writing the code. Okay, like Eclipse tool, Visual Studio, in any kind of tool you are using for developing the project. So what you do, you put all the different kind of modules in a single framework, single tools, like product services, you develop one module, payment services, you develop one module, user services, you develop one module. So all the modules will be kept in a single unit. Understand? Are you all getting my point, what I'm saying? Team, friends? Hello. So what happened? Yes, okay, understood. Thank you. So what happens? All the modules you keep in a single unit. So after a certain period of time, you develop it, and you are going to live the website. Going to put your website in the production. Means you are going to put your website in the live environment. That is going to be used by the UAT user, means end user, like client. Okay, so that is a kind of monolithic architecture. Just we have given the example of to you. What happens there? all the all the modules you used, you just keep everything in the single unit of the project tools. Every module is mesh up, mixed together at a single place, and you along with the code base, you must have one database also, which might have been saving the client's information, like user information is there, payment information is there, product information is there. Everything is saved in a single database, whatever database you are using, like Oracle or SQL or PostgreSQL. Okay, so here what happens actually, means you put a large code base, okay, and a large database, just and bind it in a single unit of framework. Okay, bind it in a single place. This is a kind of monolithic architecture is used earlier by most of the companies. Not used, but it is being used also right now. Okay, that is a kind of monolithic architecture. Means it's a single unit. So whenever you develop a application, you must have a, client side interface, a server side interface, and a database. Okay, so client, what happens, hits the request, it goes to the server side, and after that it goes to the server side, it goes to the database to fetch the information like user information, payment information, product information, like card services, whatever card you have chosen, uh, client has chosen for saving the purchasing in the future, that is a uh, card information. So that is all being fetched from the database, and it goes to the server side. Again, it goes to the client side. So two-way communication happens in here. Client sends request to server, and server sends request to database, and database again sends the response to the server, and server again sends response to the client, whatever the client has the requirement is. Okay, so this is the basic
a definition of monolithic architecture. Okay, monolithic architecture have one large code base and it's lack modularity. Lack modularity means what happens? What is this lack modularity? So, as I have already said that we have lots of modules to be developed while developing a project. Okay, so the user module, payment module, cart module, these kinds of modules are there. So these modules are used within the monolithic architecture. But lack modularity, what does it mean? Lack modularity means these modules are interdependent to each other. They are tightly coupled. Okay, suppose if user have to move to the want to go to the payment services, he wants to see whatever how much payment he has done. So first of all, he will log in into the application. He will see the user information. He will see the product information, whatever product he has chosen. After that, he will go to the uh, payment information to see. So these all modules are interdependent. He has to move every module to go into the required module he wants. Okay. So this is lack modularity. Means every module is tightly coupled. Everyone is dependent or fully dependent on each other. Okay. So this is all about monolithic architecture. So what is the disadvantage of this? Disadvantage of monolithic architecture is that, first of all, I already said that when as you write the code for the project development, it becomes a large code base. Suppose initially it is a small code base. Suppose you have started the application, it is developed and you have given the application to the user to use. But what happens in the certain in coming time, you want to add some more module. The user wants to add some more information in the website. Okay, he wants some more menu inside it. So what will happen? You will add that module in that, right? So after adding the module, that will again it will be deployed and it will be sent to the user for the testing and for the deployment, and again it will use. So after certain period of time, this is not only the thing. The user will again ask some improvement in the website. He wants some more modules. Okay. He he said that we need some feedback module. He wants to introduce in the data project. Some feedback module like he wants to add in that project. So suppose again the developer has to do what he will do. Again, developer will go and ask his team members. There is some requirement, and he has to improve that means enhance that project. So again, the enhancement will happen, and again the same will again it will be again the code base will increase. Again, there will increase the code base. So that is what I am telling. The code base will increase this by time. As the time increases, as the requirement increases, the code base increases after a certain period of time. So that is what the first disadvantage of monolithic architecture. Okay. So the second thing is it is very difficult to introduce new technology as it affects the whole application. Suppose you are developing your application in PHP, okay, and the website for developing website like you are using HTML, CSS, etc. kind bootstrap, and after certain period of time you want to means the user client want no we need some more enhanced technology to be used in in the project which you have given. So you said yes we can do it, but you can do it. It is not a easy task. You can do it. You want to add some. You want to use a higher version of the means technology you have used, or you want to use some other technology you have used. So in case of monolithic architecture, it is very difficult to adapt new technology in the project. Okay. The next thing is single code. You understood the second point?
It is very difficult to introduce new technology. Guys, students, please answer me in the chat if you understood, or should I proceed again to please let me know. Uh, okay, good. Okay, Ritik. So this is what the new technology is difficult to add in the existing project if you are using monolithic architecture. Okay. Suppose, and third point is that if single bug in the code may bring down the application. What does it mean? Suppose what happens, your project is running live in the production environment. The client is using the your project, okay, in the production environment. Suppose what happens, a network downs or some bug in the code you might have not tested it in the project development. So what happens that time? That a single bug is that will complete break down the whole application. Okay, so that is a very big disadvantage of monolithic architecture. So you might have seen this in your current life scenario. We have seen like railway application that is a monolithic architecture. Suppose one means one error happens, so it shows that the whole application is down. Or any other website like Booking Cinema Hall, or any other website which is developed on monolithic architecture. So that time, what happens? Uh, Error in the code, it will bring down the down means what happened? Down means it will not work. It will some 502 bad gateway or some 404 bad response error. Anything, any kind of error we can happen. 401, 402. So that will not allow the user to work to proceed. Okay. So that is the kind of means a big disadvantage of monolithic architecture. And the third thing is it is very difficult to scale a single module. One has to scale the whole application. Okay. So what happens if have if you have developed one module, just I said user module, and that user module you wants to enhance, you wants to make some more uh, features in it. Okay. So that's not only the thing that you have think and you are going to enhance that user module. So it's like that you can enhance the user module. So for enhancing that particular user module only, you have to enhance the whole application. You cannot go and sit that I will work on the user module, so it will be means done. No, you have to scale the whole application along with the user application. You have to do some modification in the other modules also, because that is tightly coupled to each other. One module is dependent on the other module. So you cannot go and simply wants to enhance user module. Okay. So one has to scale the whole application. So user module means what? Means enhancing one module means what? Suppose the client has a requirement that a user must have information like he has also he is getting information of the his basics, name, ID details. Okay, along with the details, there must be some uh, link means some more information there, like email ID must be there for the user to show. Okay, he's a pass. He must have password set reset option at the user module. Okay, so that things for enhancing of the that module, you cannot only go and enhance that module. Okay, understood? So this is the fourth point for single module enhancement. You cannot go and enhance. And the last point is it is the continuous deployment is very difficult. What is continuous deployment? So what is continuous deployment? What happens when you have developed an application and it is running in the live environment, and in the middle what happens, that application means needs has some bug in the code. Okay,
So now the client has asked to please resolve this bug. Then only we can proceed for further enhancement, means further use of the application for the of the project. So what happens for fixing that issue, for fixing that bug, you have to bring the whole application down. That is called downtime actually. What is downtime? Downtime actually means whole application is not working and you have given a message and at the top of the website that the application will be down during the this period of time to this period of time due to the maintenance work. And what that maintenance is? That maintenance is actually you are going to enhance that, you are going to fix that issue. Okay. You are going to fix that issue. So that is actually downtime. So downtime, you cannot go and simply put your application down. That needs permission actually. What kind of permission needs is that you have to ask the approval from the client that we are going to put your application down for this amount of time. Okay. So that is deployment. So whenever you uh, develop an application, so for after developing, you must deploy the application on the server. So that is deployment. So for deployment, you must have to keep the application down. Okay. After a certain period of time when the application is down, okay. So after that, then you can up the application. When the everything is done, you have completed your fixing of the bug and you have tested your application. Now it's now the bug has been removed. So after certain period of time, you want your application to up. So that time your application will be you will up the application for the users to use. So this is the first thing, monolithic architecture and disadvantage of monolithic architecture. Okay. So now the topic which we are going to uh, uh, discuss today is microservices architecture. Okay. So this is the very trending now technology. This is not a technology actually. It is a kind of architecture. Okay. It's a kind of frame means structure that we have to follow to while developing a application. Okay. So what is microservices architecture? So before I'm showing you the definition, I will show you the diagram of monolithic architecture and microservice architecture. Okay. So students, these are the basic monolithic and microservice architecture. You can see here what is the difference between the monolithic architecture. Please look up on this picture and analyze, and I will discuss on this. Okay. Are you able to analyze, visualize the students, this monolithic architecture, what we have discussed now, and what is microservices architecture, which I will discuss now. Just have imagine your brain, what is this and what is that. Just let me know if you have visualized. So this is monolithic architecture. The left side you are seeing, it is a client application. He is using the application. Okay. And what happens? There are different kinds of modules. Just I discussed the modules
like customer modules, product modules, cart modules. These all are kept in a single code base. All are kept in a single framework. And these all are having a one server. This is the server. Okay. So here what happens? User wants to go to the product service. First of all, he will log into the application. Okay. He will connect, gets his information in user information. He will search the product, whatever the product he wants to purchase, and he will add the product. So this is the three basic module is added in this diagram. So apart from this, there may be many modules like I said, uh, payment module, feedback module. Okay, many kind of module will be there in monolithic architecture. So this is the all are you are able to see all are kept in a single place. Okay, all are kept in a single place, and this is the deployed on one server. One server. This is the one server. So now come to the microservice architecture. So students, what happens earlier in monolithic architecture, we have different modules, and each modules are tightly coupled with each other, and every module are code base is kept in a single large code base. Okay. So in microservice architecture, what happens? Every small module are developed independently. This is very important. Independent. You must have to understand what is independent in this microservice architecture. Very important word for this microservice architecture. So what happens in microservice architecture? Every module is developed independently. Means to what? If user app module is there, product module is there, all will be developed by the project team independently. And after they are developed, each module, and they will communicate with each other using APIs. Okay. So this is what. So this is what microservice architecture means. What happens earlier? We are developing everything in a single phase of the life cycle. So now we will develop every module independently. So user information will be developed independently, like product information will be developed independently, and cart information will be developed independently, and all that information, all that module will communicate after each other when it is developed. So you can see the diagram here. You can see the diagram here. What happens here? What happens here? So here, customer is developed independently, product is developed independently, cart is developed independently, and every module is developing each other. Yes. So every module is developed independently here. Customer, product, and cart. Okay. And after all, when it is developed, so it will communicate with each other over a well-defined APIs. Okay. So API, students, you all must have know what is API. Any idea on it? Can someone tell me what is API? They will communicate with each other using well-defined APIs. Can someone tell me what is API? Am I audible?
Yes, that's right. That is a full form of this application programming interface. I want to hear from someone. Can someone define what is API? Okay, no problem. Let's move. Any students who wants to define, just raise your hand and unmute yourself to define. Yes, anyone who wants to just in 1 minute, just let me know. Anyone wants to define, or anyone wants to means give a small definition or example of it. No, not no worries. Like definition. जो भी जानते हो आप बोल दो. API क्या होता है? Okay, I think no one is going to. Okay, no issue. So I will define what is actually API. API is a kind of small programs or which is already developed and that has to be used by the other application. Okay, एक प्रोग्राम बना के रखा हुआ है और उसको कोई भी आकर के इस्तेमाल कर सकता है और उसको इस्तेमाल करने का एक मीन्स अ वे है, ऐसा नहीं कि कोई भी इस्तेमाल कर ले. लाइक एक URL बना के हम किसी को दे देते हैं. फॉर एग्जाम्पल आप एक वेदर एप्लीकेशन बनाने जा रहे हो, लाइक वेदर फोरकास्टिंग एप्लीकेशन यू आर गोइंग टू डेवलप. Okay, so in that weather forecasting application you will develop your own code, own modules, everything in that weather forecast application. So now there is a question, how you will introduce the temperature which is fluctuating, means every second, every minute, so that you cannot use on your own. वो आप अपना खुद का तो इस्तेमाल नहीं कर सकते है ना. वो क्या आप बना के यूज कर लोगे क्या कि टेम्परेचर बना सकते हो. इट्स नॉट अ बिग मींस इट्स अ वेरी बिग थिंग कि अपना एक फोरकास्टिंग एप्लीकेशन बनाए और खुद का टेम्परेचर हम बताएं कि अभी यहाँ का टेम्परेचर क्या हो रहा है. ओके, सो दिस इज means the example is will be like if you are developing your own weather forecasting application, so there you have developed your own like interface आपने बना दिया weather forecasting application का कि यहाँ पर क्लिक करने पर टेम्परेचर दिखेगा, यहाँ पे बटन लगा दिया, यहाँ पे डिजाइन दे दिया, यहाँ पे उसका लॉग इन इंफॉर्मेशन दे दिया, सो वहाँ पे थोड़ा क्लाउड दिखा दिया. तो ये तो आप लोग खुद से कर लेंगे अगर एप्लीकेशन बनाने जा रहे हैं तो. ओके, सो दैट इज नॉट एन API. वो आपने खुद का बना लिया है, एक एप्लीकेशन बना ली. अब आपको टेम्परेचर को दिखाने के लिए कि अभी क्या टेम्परेचर हो रहा है वो आपको यूज करना पड़ेगा जो वेदर फोरकास्टिंग है अपने एप्लीकेशन बना के पहले से रखा हुआ है. ठीक है, वो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का एक खुद का एप्लीकेशन होता है. वहां पर वो लोग का एक अपना मॉड्यूल है कि कैसे वो टेम्परेचर वेरी कर रहा है, कम हो रहा है, जा रहा है, आ रहा है, हर सेकंड पे जो यहाँ पे क्या API क्या होता है कि आपने आपने जो पहले से बना बनाया रेडीमेड मॉड्यूल था तो यूज कर लेंगे आप क्या करेंगे, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का वेबसाइट पे जाएंगे, उसका URL उठा लेंगे, उसी URL को हम कहेंगे API. ओके, उसी URL को API कहेंगे कि वो एक रेडीमेड बनाया हुआ प्रोग्राम पहले से रखा हुआ था, आपने उसको हिट किया और अपने वेदर फोरकास्टिंग एप्लीकेशन में ला करके रख दिया. दैट इज व्हाट API मीन्स. यू हैव यूज्ड दैट ready-made developed program at your side. That is application programming interface. So API के बाद भी बहुत सारा चीज है. REST API है, RESTful API, वो थोड़ा we will discuss later. So first you understood I think the example API. Please let me know, the students, you understood what is API? Let me know in the chat box or in the yes. Okay, good Ritik. So that is what API. So यहाँ पर ये जो अलग अलग मॉड्यूल बन रहा है वो क्या है, अलग अलग मॉड्यूल एक दूसरे से API से कम्युनिकेट करेगा. API मतलब कि हमने प्रोडक्ट सर्विस बना दिया और उसको कस्टमर सर्विस यूज करना चाह रहा है, तो कस्टमर सर्विस क्या करेगा, वो बोलेगा कि हमको कुछ तो इन्फॉर्मेशन चाहिए,
तो बोलेगा प्रोडक्ट सर्विस बोलेगा कि ठीक है, आप क्या करो कि मेरा एपीआई ले लो, ऐसा बोलेगा वो, मेरा एपीआई ऐसा बोलेगा कि इंफॉर्मेशन डॉट ऐसा करके इन्फो डॉट प्रोडक्ट डॉट स्लैश प्रोडक्ट डॉट गेट प्रोडक्ट इन्फो, ओके, लाइक दिस, वो अपना HTTPS कोलोन ऐसा करके एपीआई उसको दे देगा। किसको? कस्टमर वाले को, ठीक है। कस्टमर जो इंफॉर्मेशन फेच करना चाह रहा है, दैट इज, वो क्या करेगा, वो इस URL को हिट करेगा, यहाँ से उसको एप्लीकेशन वो एपीआई मिल जाएगा। So that is what the how microservices will communicate each other. Okay, so यहाँ क्या हो रहा था कि यहाँ सब एक दूसरे से मेशअप थे मोनोलिथिक आर्किटेक्चर में। यहाँ कोई एपीआई यूज नहीं कर रहा था, यहाँ कोड बेस से डायरेक्ट यहाँ अपना कोड हिट किया और वो कोड से यहाँ चला गया, वो ऐसा कुछ नहीं था यहाँ पर। सो ये हो गया मोनोलिथिक माइक्रो सर्विसेज का बेसिक डेफिनेशन कि क्या होता है, कि जहां जहां छोटे छोटे मॉड्यूल मॉड्यूल को छोटे छोटे भाग में बांट देते हैं और वो अपने आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है। दैट इज द डेफिनेशन ऑफ द माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर। तो दूसरा चीज क्या है माइक्रो सर्विसेज का यहाँ पर, कि लार्ज एप्लीकेशन टू बी सेपरेटेड इनटू इंडिपेंडेंट पार्ट्स विद ईच पार्ट हैविंग इट्स ओन रिस्पांसिबिलिटी। क्या होगा कि जितना बहुत, मान लो कि एक ई कॉमर्स एप्लीकेशन बना रहे हैं, एक बहुत बड़ा एप्लीकेशन है, उसको हम लोग छोटे 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 भाग में बांट देंगे। हालांकि हम लोग पहले भी छोटे छोटे भाग में बांटते थे, मोनोलिथिक आर्किटेक्चर में भी छोटे छोटे भाग में बांटते थे, लेकिन यहाँ पर बांटने का मतलब ये हुआ कि हर पार्ट का अपना अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा, ठीक है। वो अपना काम करेगा, यूजर प्रोडक्ट अपना काम करेगा, कार्ड सर्विस अपना काम करेगा। तो यहाँ पर डिवाइड करने का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है, वहां पर डिवाइड करने का इंपॉर्टेंस नहीं था, क्योंकि वो हालांकि डिवाइड डिवाइड करने के बावजूद भी एक दूसरे से टाइटली कपल था, उसको उससे उस कोड बेस से जोड़ना ही पड़ेगा आपको, उसको मतलब आगे जा करके। तो माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर क्या करता है कि जितने बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन है आजकल, जो तुम्हारा विप्रो हो गया, TCS हो गया, या फिर तुम्हारा जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, नेटफ्लिक्स है, ये जो माइक्रो सर्विसेज का जो इनोवेशन हुआ, वो तुम्हारा नेटफ्लिक्स के थ्रू हुआ है। वहां से ये सब लोग, अमेजोन और ये लोग स्टार्ट किए थे माइक्रो सर्विसेज को इंट्रोड्यूस किए हैं, कैसे मतलब कि मॉड्यूल को स्मॉल पार्ट में भागे। उसके बाद ये कॉर्पोरेट में एक तरह से इतना तेजी से स्टार्ट हुआ इस्तेमाल होना है माइक्रो सर्विसेज का, कि अभी ये हर जगह यूज हो रहा है, हर जगह यूज हो रहा है। आपको अगर डेवलप करना है एप्लीकेशन, तो माइक्रो सर्विसेज का ही फॉलो करना है। ऐसा मतलब क्लाइंट का रिक्वायरमेंट आ रहा है, लोगों का रिक्वायरमेंट आ रहा है कि हमको ऐसा चाहिए। ऐसा चाहिए क्यों? क्योंकि ये मतलब कि जो एप्लीकेशन को बहुत जल्द कम टाइम में डेवलप कर देता है, ठीक है, और इसका एक रिलायबिलिटी भी होता है। हम आगे बताएंगे इसका रिलायबिलिटी और सस्टेनेबिलिटी कैसे है, इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे, देखेंगे कि कैसे ये रिलायबल है और सस्टेनेबल है माइक्रो सर्विसेज, ठीक है। तो ये एक मोटा मोटी माइक्रो सर्विसेज का डिफिनेशन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो ये हम लोग ने ये डायग्राम भी दिखा दिया था। अब जो है इसका इसका फीचर क्या है, माइक्रो सर्विस का फीचर कह लो या कैरेक्टरिस्टिक्स कह ले, दीज आर ऑल सेम थिंग्स। तो सबसे पहले हम बता चुके हैं कि माइक्रो सर्विसेज को छोटे छोटे एप्लीकेशन में डिवाइड कर देते हैं, और हर हर एप्लीकेशन को, हर एप्लीकेशन मतलब क्या हुआ, हम हर मॉड्यूल को यहाँ पे एप्लीकेशन बोल रहे हैं। पहले क्या था कि एक मोनोलिथिक आर्किटेक्चर पूरा वेबसाइट को एक एप्लीकेशन बोल रहे थे, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, हर मॉड्यूल को एप्लीकेशन कहेंगे, ठीक है। हर मॉड्यूल को एप्लीकेशन कहेंगे। तो यूजर मॉड्यूल एक अपना एक एप्लीकेशन हो गया, प्रोडक्ट सर्विस एक अपना एप्लीकेशन हो गया, फिर आपका कार्ड सर्विस एक अपना एप्लीकेशन है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहला फीचर जो है माइक्रो सर्विस का, वो डिसेंट्रलाइजेशन है। डिसेंट्रलाइजेशन मतलब क्या हुआ, मैंने एक डायग्राम भी बनाया था यहाँ पे। डिसेंट्रलाइजेशन मतलब या दिस द डायग्राम।
तो ये मान लो मॉड्यूल 1 है, ये क्लाइंट है, ये तुम्हारा क्लाइंट है, ठीक है, ये वाला, ये क्लाइंट है, ये तुम्हारा हिट किया एप्लीकेशन को, ठीक है, ये हिट किया एप्लीकेशन को। इसको कहते हैं, बीच वाले को एपीआई गेटवे कहते हैं। अभी एपीआई गेटवे के बारे में थोड़ा सा हम बताएंगे क्या होता है एपीआई गेटवे। एपीआई गेटवे क्या होता है, आई विल डिस्कस अ लिटिल बिट ऑन इट। ये तुम्हारा माइक्रो सर्विसेज 1 हो गया मान लो, ये तुम्हारा माइक्रो सर्विसेज 2 हो गया, ये माइक्रो सर्विसेज 3 हो, ठीक है। माइक्रो सर्विसेज 1 का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, मान लो वही यूजर मॉड्यूल, यूजर इंफॉर्मेशन हो गया, ये प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन हो गया, ठीक है। मान लो ये तुम्हारा हो गया पेमेंट वाला इंफॉर्मेशन हो गया, ठीक है। तो 3 डिफरेंट मॉड्यूल है, और तीनों का जो कम्युनिकेशन है वो अलग अलग डेटाबेस से हो रहा है। ये डेटाबेस अलग हो गया, ये डेटाबेस अलग हो गया, और ये डेटाबेस अलग हो गया। देयर आर 3 डिफरेंट डेटाबेस which is being communicated from each module, module 1, module 2, module 3. Okay, so what happens, this is decentralized. Decentralized means what, means यहाँ पे देख रहे हैं आ रहा है कि हर मॉड्यूल अपने अपने डेटाबेस से कनेक्ट कर रहा है, अपने अपने डेटाबेस से कनेक्ट कर रहा है। कोई सिंगल डेटाबेस यहाँ पे नहीं है कि एक मॉरेकल डेटाबेस ले लिए और सारा चीज एक ही में सेव्ड है, सारा चीज डेटाबेस एक ही में सेव्ड है। So this is what decentralization. Every module is decentralized, means microservices is decentralized. Understood? What is decentralized? Decentralized मतलब higher degree of independence. मतलब हर मॉड्यूल का अपना अपना, ये हर मॉड्यूल इंडिपेंडेंट है अपने से, ये अपना डेटाबेस सेव करेगा, ये अपना डेटाबेस सेव करेगा, ये अपने डेटाबेस से कम्युनिकेट करेगा। सो this is decentralization. The second feature is black box. What is black box? Black box means here what happens in each module, have is the complexity, means इस मॉड्यूल का अपना एक कॉम्प्लेक्सिटी होगा, इस मॉड्यूल का अपना एक कॉम्प्लेक्सिटी होगा, इस मॉड्यूल का अपना एक कॉम्प्लेक्सिटी होगा। कॉम्प्लेक्सिटी मतलब कहने का मतलब उसका अपना अपना वर्क है, उसका अपना अपना जो मॉड्यूल डिफाइंड है, तो वो एक दूसरे से हिडन है, उसको इससे मतलब नहीं है, उसको इससे मतलब नहीं, M1 को M2 से मतलब नहीं है, M2 को M3 से मतलब नहीं है, ठीक है। तो ये तुम्हारा हो गया ब्लैक बॉक्स। ये एक फीचर है माइक्रो सर्विसेज का कि हर मॉड्यूल अपने से अपने एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, उसको कोई मतलब नहीं है। हाँ, मतलब कब होगा, जब ये इंफॉर्मेशन M1 को M2 का इंफॉर्मेशन चाहिए होगा, M2 को M3 का इंफॉर्मेशन चाहिए होगा, तो ये तो अपना इंफॉर्मेशन देगा बस, और कुछ करना नहीं है। तो दैट इज द second thing, black box. And third thing is security. Security is one of the very important feature of this microservices. So earlier पहले मोनोलिथिक में क्या होता था कि हम लोग क्लाइंट के साइड में ही क्या करते थे कि लॉगिन और लॉग आउट का, मतलब लॉगिन का एक सिक्योरिटी फीचर ऐड कर देते हैं इसके अंदर। क्या सिक्योरिटी फीचर ऐड कर देते हैं कि जैसे लॉगिन करेगा तभी वो आगे बढ़ेगा, ठीक है। अब उसके बाद वो कस्टमर में भी जा सकता है, प्रोडक्ट में भी जा सकता है, कार्ट में भी जा सकता है। सो यहाँ पर सिक्योरिटी सिर्फ एक ही जगह लगा हुआ है, क्लाइंट की तरफ लगा हुआ है। तो अब बताओ, हम यहाँ पर जो अलग अलग मॉड्यूल बना रहे हैं, इसमें क्या करेंगे, हर मॉड्यूल में अपना अपना एक एपीआई होगा, और हर एपीआई का अलग अलग सिक्योरिटी होगा, ठीक है। तो अब बताओ कि इस सिक्योर ज्यादा कौन होगा, माइक्रो सर्विस होगा, कि यहाँ पर जो एक ही जगह हम लोग सिक्योरिटी लगा रहे हैं लॉगिन का, जो यूजर आईडी पासवर्ड, वो ज्यादा सिक्योर होगा? टेल मी स्टूडेंट्स, कैन यू टेल मी विच विल बी मोर सिक्योर? माइक्रो सर्विसेज। हाँ, हाउ हाउ कैसे बताओ? क्योंकि सर वो ईच मॉड्यूल सर एपीआई को यूज कर रहा है सर, इसीलिए। हाँ जिससे सिक्योर आपका हर एक मॉड्यूल ज्यादा सिक्योर हो रहा है जी, मोनोलिथिक ये उससे, इसलिए सर ये माइक्रो सर्विस ज्यादा सिक्योर होगा। गुड गुड, वेरी गुड, गुड वेरी गुड। हु सेड दिस? कैन यू नेम?
सर शशि कुमार। हाँ शशि, very good answer. You are understanding, I think. So in monolithic what happens, यहाँ पर एक ही जगह पे सारा सिक्योरिटी लगा हुआ है। यहाँ पे क्या होगा कि हर मॉड्यूल पे अलग अलग सिक्योरिटी लगा होगा, और उसके बावजूद ये जो सिक्योरिटी हर मॉड्यूल पे लगा हुआ ही है, उसके बावजूद एक एपीआई गेटवे होता है, ये वाला बीच वाला को एपीआई गेटवे कहते हैं। क्लाइंट जब रिक्वेस्ट को भेजता है हर मॉड्यूल के पास, तो पहले वो एपीआई गेटवे में जाता है, उसके बाद ये हर एक मॉड्यूल जाएगा। तो ये एक तरह का राउटिंग मैकेनिज्म है। एपीआई गेटवे इज अ काइंड ऑफ राउटिंग मैकेनिज्म विच विल सेंड द रिक्वायर्ड यूआरएल टू द रिक्वायर्ड मॉड्यूल। लाइक यूजर यहाँ से इसको ये यूजर को चाहिए कि हम यूजर वाला को हम यहाँ पे M1 को हिट करें, तो क्या करेगा, पहले ये एपीआई गेटवे में जाएगा, और एपीआई गेटवे के पास अपना एक ऑथेंटिकेशन और ऑथोराइजेशन मॉड्यूल होता है, वहां पर ये पहले सिक्योर कर लेगा। उसके बाद वो जाके बोलेगा कि तुमको कहाँ जाना है भाई, तो M1 में जाना है, तब वो इसको M1 में ले जाए, तब वो जाकर के इसको M1 में ले जाएगा। सो दैट इज अ वेरी बिग एडवांटेज ऑफ माइक्रो सर्विस, कि यहाँ पर लेयर बाय लेयर सिक्योरिटी होता है। ठीक है, यहाँ पर सिक्योरिटी यहाँ पर एपीआई गेटवे के पास हो गया, और एक मॉड्यूल के पास, हर मॉड्यूल के पास भी हो गया। ठीक है, तो एपीआई गेटवे क्या होता है कि एक एंट्री पॉइंट होता है, इज अ काइंड ऑफ एंट्री पॉइंट। एपीआई गेटवे is an entry point, okay, where all the request hit by the user जो hit करेगा will be routing by API गेट। वो पहले एपीआई गेटवे में जाएगा, उसके बाद वो डिसाइड करेगा कि किस मॉड्यूल में जाना है। ठीक है, ये एक पहला चीज होता है। दूसरा चीज है कि एपीआई गेटवे क्या करता है, एपीआई गेटवे प्रोवाइड्स ऑथेंटिकेशन एंड ऑथोराइजेशन मैकेनिज्म। तो मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है यहाँ पे आप लोगों से, कि ये दो चीज यहाँ पे होता है, ऑथेंटिकेशन एपीआई गेटवे प्रोवाइड करता है, तो कोई डिफरेंस बता सकता है कि ऑथेंटिकेशन ऑथोराइजेशन में क्या डिफरेंस है? Anyone will raise your hand if anyone knows, otherwise I will answer. ऑथराइजेशन में सर हम लोग किसी पार्टिकुलर पर्सन को हम लोग प्रोवाइड करते हैं कि उसको उस जगह पे जाने का या उस सिस्टम को खोलने का। और ऑथराइजेशन में सर हम वहाँ पे ओटीपी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जो भी वहाँ पे लॉगिन करता है उसे ओटीपी सर्विस प्रोवाइड किया जाता है सर। Yes, very correct. Good answer. So authentic, you are right, I will elaborate more here. तो फर्स्ट सबसे पहले क्या होता है, जब भी आप एप्लीकेशन को लॉगिन करते हैं तो पहले आपको ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा। ऑथेंटिकेट मतलब कि आपको यूजर आईडी और पासवर्ड देना है। तो एपीआई गेटवे पहले ये काम करता है कि क्या ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म फॉलो कर रहे हैं। ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म बहुत सारा है, ओटीपी है जैसे आपने बोला, फिर कॉल करके होता है, ओटीपी है, पासवर्ड है। So these are different kind of authentication mechanism. And what is authorization mechanism actually? So if I am going to log in an application, अगर मैंने एक एप्लीकेशन को लॉग इन कर लिया, तो मेरे पास उस एप्लीकेशन के अंदर क्या क्या मैं कर सकता हूँ। ठीक है, जैसे मैं एप्लीकेशन के अंदर मैं क्या ई कॉमर्स एप्लीकेशन के अंदर मैं कुछ खरीद सकता हूँ। लाइक मैं अपना कुछ प्रोडक्ट मुझे पसंद आया, मैंने उसको सेव किया और वो कार्ट में सेव हो गया, ये एक काम कर सकते हैं। या फिर उसको परचेज कर सकते हैं, या फिर उस हमको हम बाद में मॉडिफाई डिलीट, हम नहीं खरीदना चाहते उसको हटा सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। तो ये मेरा एक दायरा है, मेरा एक लिमिटेशन है कि हम इतना ही काम कर सकते हैं। तो ये एक परमिशन है। अगर आप चाहोगे कि उस प्रोडक्ट को उस मॉड्यूल से ही हटा दें, तो आप हटा सकते हो क्या, बताओ। जो प्रोडक्ट आपको मान लो फ्लिपकार्ट में दिख रहा है, उस प्रोडक्ट को वहां से हटा दे,
आप हटा सकते हो। कैन यू आंसर एनीवन? सर नहीं। क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट कीजिएगा। मान लो आप फ्लिपकार्ट में एक प्रोडक्ट दिखा आपको, ठीक है, और वो प्रोडक्ट आप हटा सकते हो क्या? वो प्रोडक्ट अपने से आपको नहीं, आपको सर प्रोडक्ट वहां से हटाना अगर किसी को नहीं। अगर सर इस विश लिस्ट को, अगर उस प्रोडक्ट को हम लोग विश लिस्ट में रखते हैं तो हटा सकते हैं, पर अगर वहाँ अगर वेबसाइट से बोलेंगे तो वहां से नहीं हटा सकते हैं सर। यस, दैट्स व्हाट आई एम आस्किंग। वेबसाइट से मैं बोल रहा हूँ कि किसी को नहीं देखे। ठीक है, मेरा स्क्रीन दिख रहा है क्या? मैं स्क्रीन विजिबल ऑल ऑफ यू? सर स्क्रीन तो दिख रहा है पर आपका सिर्फ पावर पॉइंट वाला दिख रहा है। ओके ओके, सॉरी सॉरी सॉरी। मैं यहाँ कुछ शेयर किया था, लिख रहा था मैं यहाँ पे। ये अभी क्या दिख रहा है? पीपीटी या नोटपैड दिख रहा है क्या? नो सर, सिर्फ पीपीटी दिख रहा है सर। सॉरी, 1 मिनट, लेट मी शेयर वंस अगेन। अभी? यस सर, अब दिख रहा है सर। हाँ ठीक है। एक्चुअली आई हैव शेयर्ड माय स्क्रीन मेनी टाइम्स, सो लेट मी नो इफ एनी प्रॉब्लम इज देयर इन द स्क्रीन शेयरिंग। ओके, तो मैं बता रहा था कि हाँ, वो आपने सही कहा कि वेबसाइट से नहीं हटा सकते हैं। ठीक है, वेबसाइट से नहीं। सो ये एक परमिशन है यूजर को कि आप क्या कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं वेबसाइट के अंदर। So that is authorization. Means what permission you are allowed to do on a particular website. Okay. So this is the difference between authentication and authorization. So यहाँ पर क्या है कि मोनोलिथ माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर में ये जो सिक्योरिटी है वो तुम्हारा कौन हैंडल करता है? एपीआई गेटवे हैंडल करता है। अभी ये मेरा स्क्रीन दिख रहा है क्या, वो पेंट वाला? यस सर। हाँ ठीक है। ये उस टाइम दिख रहा था क्या? नो सर। मैंने उस टाइम से डायग्राम बना के समझाना था, तो सॉरी सॉरी। सो मैं बता रहा था कि ये जो है डिफरेंट डिफरेंट से मैं उस टाइम बनाया था कि 3 मॉड्यूल है, M1 M2 M3, 3 मॉड्यूल है। और इस सब को जो है एपीआई गेटवे से क्लाइंट हिट कर रहा है। ये क्लाइंट है तुम्हारा, ये वाला क्लाइंट। और ये हिट कर रहा है एपीआई गेटवे, ये वाला एपीआई गेटवे है, मैंने लिखा था यहाँ पे। और एपीआई गेटवे के थ्रू वो हर हर मॉड्यूल जो है अपना अपना डेटाबेस रखा हुआ है। हर मॉड्यूल अपना अपना डेटाबेस रखा हुआ है, इसीलिए इसको डिसेंट्रलाइजेशन भी कहते हैं। इसीलिए इसको डिसेंट्रलाइजेशन भी कहते हैं। ये हर मॉड्यूल का अपना अपना डेटाबेस है। हर मॉड्यूल मतलब हर माइक्रो सर्विस, और हर माइक्रो सर्विस खुद में एक एप्लीकेशन है। ठीक है, तो जब भी क्लाइंट हिट करेगा तो पहले एपीआई गेटवे के पास जाएगा, और एपीआई गेटवे के पास क्या लगा हुआ है? ऑथेंटिकेशन एंड ऑथोराइजेशन। ओके, और उसके बाद ही ये कहाँ जाएगा? माइक्रो सर्विस में जाएगा, जिस माइक्रो सर्विसेज में उसको राउट करना है। ठीक है। सो यहाँ पर क्या हुआ कि सिक्योरिटी का जो हम बता रहे थे, वो मेन चीज यहाँ पे 2 जगह लगा हुआ है। एक हर माइक्रो सर्विस में लगा हुआ है, और यहाँ पे एक एपीआई गेटवे में भी लगा हुआ है। सो दिस इज व्हाट आई वाज टेलिंग, माइक्रो सर्विस फीचर सिक्योरिटी। अच्छा, नेक्स्ट है तुम्हारा है पॉलीगॉट। ये पॉलीगॉट क्या होता है कि डिफरेंट माइक्रो सर्विसेज यूज डिफरेंट वर्जन ऑफ सेम प्रोग्राम लैंग्वेज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है माइक्रो सर्विस फीचर का, ये वाला माइक पॉलीगॉट। ठीक है, तो ये इसका सबसे बेहतरीन एग्जांपल ये है कि आपने एक प्रोजेक्ट ले लिया किसी कंपनी से कि हम आपका प्रोजेक्ट बना देंगे किसी ऑर्गेनाइजेशन। अब वो प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है, ठीक है, और बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। तो आपने टीम हायर कर ली प्रोजेक्ट को बनाने के लिए, 50 टीम मान लो हायर कर लिया। 50 में भी काम नहीं चलेगा, आपको और ज्यादा चाहिए। ठीक है, तो हर आपने उस प्रोजेक्ट बनाने के लिए अलग अलग मॉड्यूल को तैयार कर लिया, राइट? अलग अलग मॉड्यूल तैयार कर लिया, डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूल तैयार कर लिया। अब पता चला कि आपने माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर को फॉलो करने जा रहे हैं। तो आप वो क्या बोले हैं कि यूजर यूजर मॉड्यूल जो है मैं इतने चीज टीम को दे रहा हूँ, ये आप डेवलप करोगे, प्रोडक्ट मॉड्यूल आप ये डेवलप करोगे, और कार्ट मॉड्यूल आप ये डेवलप करोगे। डिफरेंट डिफरेंट टीम साइज को दे दिया। ठीक है, अब पता चला एक टीम बोल रहा है कि हमको तो सिर्फ जावा आता है सर, हम तो जावा पे काम करेंगे, तो हम यूजर सर्विसेज जावा बना देंगे। तो हम बोला ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप इसको बनाना पड़ा। दूसरा टीम बोला
कि हमको जो है जावा नहीं आता है, हम जो है PHP पे काम करेंगे या पाइथन पे काम करेंगे। हम बोला अरे कैसे, ऐसे कैसे हो जाएगा, आप वो टीम इस पे काम करेगी, आप इस पे काम करेंगे। तो फिर बोला कि अच्छा ये तो माइक्रो सर्विस, मेरे दिमाग में आया कि ये तो माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर है, उसको यूजर से कोई मतलब है नहीं, यूजर बना रहा है, वो अपना काम करेगा, ये अपना काम करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, दूसरा टीम को मैंने राइट दे दिया, मैंने उसको परमिशन दे दिया, जाओ तुमको जिस लैंग्वेज पे काम करना है बनाओ, लेकिन ये विद इन टाइम पीरियड में बन जाना चाहिए। तीसरा टीम आया, वो बोला कि हमको जो है ये लैंग्वेज पे नहीं आता है, ये लैंग्वेज पे नहीं आता, हमको सिर्फ डेटाबेस आता है। ठीक है, डेटाबेस में भी हमको ओरेकल आता है। तो बोला ठीक है, हम तुमको क्या करते हैं, डेटाबेस के काम में ऐड कर देते हैं। ठीक है, अब वो क्या करेगा कि डेटाबेस का काम ऐड करेगा, और डेटाबेस में भी बहुत सारे डेटाबेस होते हैं, ओरेकल है, SQL है, पोस्टग्रेस है। ठीक है, तो वहां पर वो बोला कि हम ओरेकल पे काम करें, राइट। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि एक टीम तो एक मॉडल पे काम कर रहा है, एक अपने लैंग्वेज पे काम कर रहा है, दूसरा टीम उस लैंग्वेज पे काम कर रहा है, तीसरा टीम कुछ डेटाबेस पे काम कर रहा है। अब ऐसा हम मोनोलिथिक में कर सकते थे क्या, बताओ, टेल मी एनीवन, ये काम मोनोलिथिक में कर सकते थे क्या? हाँ, यस सर, नहीं नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, राइट। मोनोलिथिक में नहीं कर सकते हैं, मोनोलिथिक में सारा चीज एक ही जगह लिखा हुआ है, वो एक तो इक्लिप्स बना हुआ है, उसी इक्लिप्स में सारा पे काम करना है, सब टीम को काम करना है, तो सवाल ही नहीं कि अलग अलग लैंग्वेज पे काम कर सकते। तो पॉलीगॉट यही होता है कि हर माइक्रो सर्विसेज जो है पहले बात तो कि अलग अलग वर्जन पे भी काम कर सकता है, से वर्जन ऑफ सेम प्रोग्राम, लाइक कोई जावा 8 पे काम करना चाहता है, कोई जावा 11 पे काम करना चाहता है, वो एक दूसरा चीज हो गया। कोई डिफरेंट लैंग्वेज पे काम करना चाहता है, लाइक कोई बोल रहा है कि हमको जो है फॉर पाइथन पे काम करना है, कोई बोल रहा है PHP पे काम करना है, और कोई बोल रहा है कि हमको अलग अलग डेटाबेस पे काम करना है। दिस इज पॉलीगॉट, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, यू मस्ट नो माइक्रो सर्विस के बारे में। पॉलीग्लॉट क्या होता है कि अलग अलग माइक्रो सर्विसेज जो है अलग अलग लैंग्वेज को यूज कर सकता है। अभी मैंने एक एग्जांपल दिया था आप लोगों को एपीआई गेटवे का, सॉरी एपीआई का, कि आपने एक वेदर फोरकास्टिंग एप्लीकेशन बनाना है, तो आपने वेदर फोरकास्टिंग एप्लीकेशन बना लिया। ठीक है, अब उसको आप जब टेम्परेचर वाला एपीआई को यूज करने जाएंगे, तो आपको पता है क्या कि वो जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने जो बना के रखा है, किस किस बोर्ड बेस में बना के रखा है, बताइए, कोई बता सकता है क्या, वो किस बोर्ड किस लैंग्वेज में बनाया है? मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने जो अपना वेदर फोरकास्टिंग एप्लीकेशन बनाया है टेम्परेचर को बताने के लिए, वो आप बता सकते हैं क्या वो किस पे बनाया है? आपको सिर्फ क्या करना है, उसको सिर्फ इस्तेमाल करना है, वो एपीआई को यूज करना है। तो आपने परमिशन ले लिया, आपने उसका एपीआई यूज कर, एपीआई मतलब क्या होता है, मैंने दिखाया था URL, ऐसा एपीआई होता है, गेट, मान लो कि HTTP ऐसा करके एपीआई हो जाएगा वेदर फोरकास्टिंग का यूज करने के लिए। ऐसा HTTP info डॉट, इधर एग्जांपल दे रहे हैं हम, डिपार्टमेंट डॉट गेट टेम्परेचर, वो ऐसा आपको दे देगा कि आप इसको यूज कर लो, आपको इससे टेम्परेचर मिल जाएगा। आप टेम्परेचर भी कहाँ का चाहिए, तो यहाँ पर मान लो ऐसा कर देंगे, इक्वल टू, मान लो पटना का चाहिए, क्वेश्चन मार्क पटना, और उसका वैल्यू मान लो 40, तो ऐसा करके वो आपको दे देगा। अब ये URL से जो इन्फॉर्मेशन तुम्हारे पास टेम्परेचर का आया कि अभी टेम्परेचर 40 डिग्री है पटना का, ये वो किस लैंग्वेज में बनाया है पता चलेगा क्या आपको, बताइए। हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल तो विजिबल भी नहीं नहीं होगा। हाँ, टेल मी, बोलो। नहीं सर, नहीं पता चलेगा, नहीं पता हाँ, चलेगा सर। नहीं पता चलेगा जब तक वो बताएगा नहीं। ठीक है, तो हम यहाँ पर सबसे ये वही बता रहे, पॉलीगॉट के बारे में बताना चाह रहे थे कि वो जो हम लोगों को बना के देगा अब एपीआई, वो हम लोग अलग अलग लैंग्वेज में बना सकते हैं। तो एक टीम तो जावा में काम कर सकता है, और दूसरा टीम पाइथन पे भी काम कर सकता है, तीसरा टीम
PHP भी काम कर सकता है, चौथा टीम डेटाबेस भी काम कर सकता है। तो यहाँ देख रहे हो मतलब कैसे काम जल्दी हो कि नहीं होगा। पहले सब टीम एक ही चीज को लेके बैठा हुआ है, जावा पे काम कर रहा है अब, और सारा एक ही मॉड्यूल पे काम कर रहा है, मतलब एक ही जगह पे बैठ के काम कर रहा है। अब उसको टीम को बांट दिए हैं कि लो तुम इस पे करो इस पे करो, अब जैसे काम डिस्ट्रीब्यूट होगा तो काम भी जल्दी होगा, राइट, है ना। लास्ट चीज है एक फेलियर रेजिस्टेंस। क्या होता है फेलियर रेजिस्टेंस? मतलब क्या हुआ, ये तुम्हारा M1 मॉड्यूल है, M2 मॉड्यूल है, M3 मॉड्यूल है, ये सारा एक दूसरे पे, सारा इंडिपेंडेंट है, सारा इंडिपेंडेंट है, इसको इससे मतलब नहीं है, इसको इससे मतलब नहीं, ठीक है। लेकिन अब मान लो यही मोनोलिथिक आर्किटेक्चर होता, यहाँ पर मोनोलिथिक आर्किटेक्चर में यहाँ पे क्या होता कि तुम्हारा मान लो प्रोडक्ट सर्विस में एक बग आ जाता, एरर आ जाता, तो उसके वजह से क्या होगा कि पूरा एप्लीकेशन डाउन हो जाएगा, मीन्स द यूजर विल नॉट एबल टू लॉग इन इनटू द एप्लीकेशन, यूजर विल नॉट बी एबल टू लॉग इन इनटू द एप्लीकेशन। तो यहाँ पे क्या होगा कि वो पूरा एप्लीकेशन डाउन हो जाएगा। लेकिन अब बताओ यहाँ मोनोलिथिक आर्किटेक्चर है, तो मान लो M1 यहाँ पे डाउन हो गया, काम नहीं कर रहा है, तो M2 काम करेगा कि नहीं करेगा, ये बताओ मेरे को। M3 माइक्रो सर्विस काम करेगा कि नहीं करेगा, ये बताओ, टेल मी एनीवन। टेल मी। यस, गुड, गुड ऋतिक। मोनोलिथिक में काम नहीं करेगा, लेकिन यहाँ पे काम करेगा। यहाँ पे मान लो इसको M1 को M2 से मतलब है ही नहीं, तो क्या होगा, M2 तो अपना काम करेगा, वो मान लो यूजर को M1 यूजर इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए, तो उसको सिर्फ ये वाला एप्लीकेशन नहीं मिलेगा, लेकिन ये वाला मिलेगा ना, तीसरा तीसरा वाला तो मिलेगा ना, ये पूरा, उसकी वजह से तो पूरा एप्लीकेशन डाउन नहीं हो जाएगा, ठीक है, उसके वजह से पूरा एप्लीकेशन डाउन नहीं हो जाएगा, दैट इज, यस यस रति, बिकॉज दे आर इंडिपेंडेंट ऑन दैट, राइट। सो ये है तुम्हारा failure resistance. Microservices are designed to cope up with failure. When one microservice fails, the application can still function. Okay? Just 1 minute, guys. So, what I was discussing, microservices are designed to cope up with failure. When one microservice fails, the application is still down. मतलब 100% तो डाउन नहीं होगा, ये काम करता रहेगा। अनलाइक मोनोलिथिक एप्लीकेशन वेयर वन फेल्स द होल ऐप क्रैशेस। मतलब माइक्रोसर्विस में क्या होगा कि एक भी फेल होगा, पूरा एप्लीकेशन डाउन हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका माइक्रो सर्विस आपस में बात कैसे करते हैं, ठीक है। माइक्रो सर्विस आपस में बात कैसे करते हैं, तो कम्युनिकेशन हमारा, आप लोग ने किसी ऑपरेटिंग सिस्टम में पढ़ा होगा या फिर पढ़ेंगे कि सिंक्रोनस कम्युनिकेशन क्या होता है और असिंक्रोनस कम्युनिकेशन क्या होता है, ठीक है। कोई पढ़े हैं क्या ये दोनों, सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन, या नहीं पढ़े तो मैं बताऊंगा थोड़ा सा इसके बारे में, लेट मी नो। Anyone have gone through this? What is synchronous communication and asynchronous communication? Tell me. Okay, no worries. No worries. Let us proceed. Okay. What is I will discuss. Okay, Vishal. I will discuss. तो सिंक्रोनस कम्युनिकेशन, दो तरह के कम्युनिकेशन होते हैं। मैंने बता दिया कि माइक्रो सर्विसेज आपस में कम्युनिकेट करेगा दो तरह से,
एपीआई के थ्रू। ठीक है, मैंने एपीआई बता दिया क्या होता है, एपीआई के थ्रू कम्युनिकेट कराए। अब क्या है कि यहाँ पर जो है दो तरह के कम्युनिकेशन होते हैं, एक सिंक्रोनस कम्युनिकेशन होते हैं और एक एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन होते हैं। तो सिंक्रोनस कम्युनिकेशन का जो एग्जांपल है तुम्हारा, वो मोबाइल फोन ले सकते हैं। ठीक है, मान लो मैं किसी से बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो इफ आई टॉक टू समवन, सो आई विल वेट फॉर द रिस्पॉन्स इफ आई स्पीक समथिंग। अगर मैं कुछ बोल रहा हूँ कॉल पे मोबाइल से, तो मैं कुछ बोला तो मुझे रिस्पॉन्स चाहिए, तभी तो मैं समझूंगा कि मेरी बात हो रही है कि नहीं हो रही है। दैट इज सिंक्रोनस कम्युनिकेशन। मोबाइल पे जो बात करते हैं, ठीक है, फोन से जो बात करते हैं, वो उसको हम लोग इसका एग्जाम्पल बता रहे हैं सिंक्रोनस कम्युनिकेशन क्या होता है। और असिंक्रोनस कम्युनिकेशन क्या होता है, ईमेल के थ्रू। मान लो मैंने एक ईमेल भेजा किसी को, अब मैंने भेज दिया, मुझे तुरंत तो रिप्लाई नहीं चाहिए, मुझे मैं वेट करूंगा रिप्लाई के लिए, मैं वेट करूंगा रिप्लाई के लिए। दैट इज कॉल्ड asynchronous communication. So the difference is that when in case of synchronous communication, when you talk to someone, when you communicate with someone, you must have to wait for the response from the other immediately. जैसे आपने कॉल किया, आपको बात करने के बाद आपको उसका रिस्पॉन्स आना चाहिए, नहीं तो आप अगर हेलो हेलो करते रहेंगे, वहां से जवाब आएगा ही नहीं, तो वो मतलब कम्युनिकेशन फेल हो गया। दैट इज नॉट अ सिंक्रोनस कम्युनिकेशन। सिंक्रोनस में क्या होता है कि हमको तुरंत रिप्लाई आना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर ईमेल एक काइंड ऑफ एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन है। ईमेल क्या है, असिंक्रोनस कम्युनिकेशन। इसमें क्या है कि अगर मैंने मैंने मेल किया, उसके बाद मुझे क्या आना चाहिए, रिस्पॉन्स आना चाहिए तुरंत में। ठीक है, तुरंत में नहीं, मतलब कि मुझे रिस्पॉन्स कब आएगा मैं नहीं पता, लेकिन मैं वेट करूंगा रिस्पॉन्स के लिए। दैट इज कॉल्ड एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन। तो ईमेल पे हम लोग क्या करते हैं, आपने मैंने भेज दिया मेल, अब मैं शाम तक वेट करूंगा कि रिप्लाई के लिए, तो दैट इज कॉल्ड एसिंक्रोनस। तो माइक्रो सर्विसेज भी कुछ इस तरह से कम्युनिकेट करता है। दो तरह से कम्युनिकेशन होता है, सिंक्रोनस कम्युनिकेशन होता है और असिंक्रोनस कम्युनिकेशन होता है। ठीक है, तो इसका जो मैं डायग्राम एक बनाऊंगा यहाँ पे, ये मान लो एक मॉड्यूल है और ये एक दूसरा माइक्रो सर्विस है। ठीक है, तो ये भेजा इसको रिक्वेस्ट, ठीक है, ये इसको रिक्वेस्ट भेजा, ये रिक्वेस्ट भेजा, और यहाँ से ये इसको तुरंत में जस्ट रिस्पॉन्स भेजा। क्या करेगा, ये इसको रिस्पॉन्स भेजेगा। ये तुम्हारा M1 हो गया, ये M2 हो गया। दैट इज कॉल्ड synchronous communication. Means as the request is sent and immediately the response is generated. Okay, and if in case of asynchronous communication, what happened, this response will be delayed. This response will be delayed. ठीक है, वो डिलेड मतलब मेरे को कब रिस्पॉन्स आएगा मुझे पता नहीं, वो 24 आवर्स में कब भेजेगा या 24 आवर्स के बाद भेजेगा। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा असिंक्रोनस कम्युनिकेशन। तो माइक्रो सर्विसेज जो है ना, एक दूसरे से सिंक्रोनसली और असिंक्रोनसली कम्युनिकेट करते हैं। ठीक है, तो आप लोग जब माइक्रो सर्विसेज प्रोजेक्ट जब डिप्लॉय बनाने जाएंगे, तो उसमें कम्युनिकेट करने के लिए जो प्रोटोकॉल है वो रेस्ट टेम्पलेट है। रेस्ट टेम्पलेट आप पढ़ेंगे आगे जाके, जब जब अच्छे तरीके से माइक्रो सर्विसेज को मतलब यूज़ करने जाएंगे अपने प्रोजेक्ट में। फेन क्लाइंट क्या होता है, रेस्ट टेम्पलेट क्या होता है, ये सब पढ़ेंगे। और एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन में हमारा क्या होता है कि द क्लाइंट सेंड्स अ रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट तो भेजिया और वेट फॉर रिस्पॉन्स फ्रॉम द सर्विस। वो
रिस्पॉन्स के लिए वेट करेगा। तो उसके लिए भी अगर आप मतलब जो प्रोटोकॉल्स है वो जब आप लोग एप्लीकेशन डेवलप करने लगोगे तब समझ में आया कि AMQP प्रोटोकॉल क्या होता है, मैसेज ब्रोकर प्रोटोकॉल क्या होता है, काफका काफका रैबिट, ये सब नहीं सुने होंगे मुझे मेरे ख्याल से आप लोग। ये काफका रैबिट MQ क्या होता है, ये सब जब आप लोग तैयार करने लगेंगे, डेवलप करने लगेंगे एप्लीकेशन, तो जब दो एप्लीकेशन को आप कम्युनिकेट कराएंगे तो आपको रिक्वायरमेंट के हिसाब से है कि आप सिंक्रोनस करेंगे या फिर असिंक्रोनस करेंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? एनी एनी क्वेश्चन टिल नाउ इन कम्युनिकेशन ऑफ माइक्रो सर्विसेज एवरीवन? सो यहाँ पर एक और चीज है कि रेस्ट एपीआई क्या होता है। हमने तो रेस्ट एपीआई बता दिया आपको क्या होता है, कि एपीआई क्या होता है, एक बना बनाया प्रोग्राम है, ठीक है। वो क्या करेगा, रेडीमेड जा करके उसको इस्तेमाल कर लेगा उस एपीआई को। मैंने बताया भी, मान लो एक एपीआई है ये वाला, वेदर डिपार्टमेंट का टेम्परेचर का एपीआई है, वो गया और इसको हिट किया और इसको यूज कर लिया और दिखा दिया कि क्या टेम्परेचर होगा, दैट इज एपीआई। अब इसके बाद आता है कि रेस्ट एपीआई क्या होता है। रेस्ट एपीआई को किसी के बारे में कोई पढ़ा है क्या? एनीवन हैविंग नॉलेज ऑन रेस्ट एपीआई? व्हाट इज रेस्ट? हाँ, एनी आइडिया स्टूडेंट्स, व्हाट इज रेस्ट? रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफर। No one is replying, it means no idea you have, I think. तो रेस्ट एपीआई क्या होता है कि इसी का पार्ट है, एपीआई का पार्ट है, एपीआई का सब पार्ट है, इट इज सब पार्ट ऑफ एपीआई। अभी मेरा क्या स्क्रीन नोटपैड दिख रहा है क्या? एवरीवन टेल मी। हाँ, यस, गुड। सो इट इज द सब पार्ट ऑफ एपीआई। सो हियर REST API has some constraints. Some constraints. तो कंस्ट्रेंट क्या होता है REST API में, कि अगर कोई क्लाइंट रिक्वेस्ट भेज रहा है तो एक सर्वर भी होना चाहिए। तो पहला कंस्ट्रेंट हुआ कि क्लाइंट और सर्वर होना चाहिए, क्लाइंट एंड सर्वर। दूसरा क्या है कि ये स्टेटलेस होना चाहिए, स्टेटलेस। स्टेटलेस क्या होता है कि मान लो क्लाइंट कोई रिक्वेस्ट भेजा, ये मान लो क्लाइंट है और ये तुम्हारा सर्वर है। तो क्लाइंट कोई रिक्वेस्ट अगर सर्वर को भेजा तो सर्वर उस डेटा को सेव नहीं कर सकता है। सर्वर का अथॉरिटी नहीं है कि क्लाइंट के डेटा को सेव कर, वो सिर्फ वो इस डेटा को पढ़ेगा, रीड करेगा और रीड करके वो उस रिप्लाई को रिस्पॉन्स दे देगा। ठीक है, तो स्टेटलेस मतलब क्या हुआ कि इट विल नॉट सेव द क्लाइंट डेटा। ओके, सो दैट इज स्टेटलेस। तीसरा क्या है, ये तुम्हारा फॉलो करेगा, विल फॉलो, गेट, पुट, पोस्ट, ये सब आई थिंक यू माइट हैव गॉन थ्रू दिस इन सर्वलेट। गेट, पुट, पोस्ट, पुट क्या होता है? गेट मतलब क्या हुआ कि अगर कोई रिक्वेस्ट हमको सिर्फ चाहिए, ठीक है, दूसरे माइक्रो सर्विसेज, तो हम लोग गेट गेट HTTP का इस्तेमाल करते हैं। पुट इस्तेमाल करते हैं जब हम लोगों को कोई डेटा को अपडेट करना है माइक्रो सर्विसेज में, हमको कुछ डेटा भेजना है, तो वहां पर पुट का इस्तेमाल करते हैं। और पोस्ट when we want to create some new database, new entry in the database, new information, so that is post. So these are the best HTTP uh, रिक्वेस्ट है ये सब। ठीक है, ये गेट, पुट, पोस्ट, ये सब जब पढ़ेंगे आप लोग आगे जाएंगे तो पढ़ेंगे क्या होता है गेट, पुट, पोस्ट। सो
दिस इज व्हाट अबाउट रेस्ट एपीआई क्या होता है? एक एपीआई का एक कंस्ट्रेंट है, एक रूल्स है कि इसको फॉलो करना है। जब आप एपीआई बनाएंगे तो आपको ये सब होना चाहिए। क्या होना चाहिए? क्लाइंट सर्वर होना चाहिए, सर्वर स्टेटलेस होना चाहिए, और एक चीज और है, कैशेबल। कैशेबल, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कैशेबल क्या होता है? कैशेबल क्या होता है इसके बारे में थोड़ा बता देते हैं हम, क्या होता है। इसका एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल हम आपको एफबी से बता देते हैं, ठीक है? व्हाट हैपेंस गाइस, what is cacheable? I will just explain. When you are using, suppose you are using your Facebook, okay? So first time when you log in, what happens? It goes to the database of Facebook to fetch the information. Okay, आपने क्या किया? आपने फर्स्ट टाइम फेसबुक को लॉग इन किया, तो आपका जो रिक्वेस्ट है वो कहाँ जाएगा? फेसबुक के डेटाबेस पे जाएगा, और वहां से आपके रिक्वेस्ट को वो उठा के ला के दे देगा। और उसके बाद जितनी सारी पोस्ट हैं, जितना आपके पास नोटिफिकेशन है, वो सारा आपके फ्रंट में आ जाएगा, ठीक है? दैट इज व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग द फर्स्ट टाइम ऑफ द लॉगिन। ओके, सो in the second time what happens, you sit idle, you are not using anything right now. Okay, so suppose you have been means your session is delayed for some period of time, you have been sitting idle, आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं फेसबुक को, ठीक है? तो जैसे ही आप कुछ देर बाद फिर से फेसबुक को इस्तेमाल करने जाएंगे, तो फिर से आपका सारा इंफॉर्मेशन आपका लोड होगा, फिर से सारा इंफॉर्मेशन आपका लोड होगा। मतलब आपका यूजर इंफॉर्मेशन, आपका पोस्ट इंफॉर्मेशन, आपका नोटिफिकेशन इंफॉर्मेशन दोबारा लोड होगा। मान लो आधे घंटे बाद आप फिर से यूज करने जा रहे हैं, लॉग आउट नहीं किए हैं आप, तो कि उस वक्त क्या होगा कि वो डेटाबेस हिट नहीं करेगा। फेसबुक जो है वो अपना डेटाबेस हिट नहीं करेगा। वो क्या करेगा कि सिस्टम के आपके मोबाइल के ब्राउजर में वो इंफॉर्मेशन सेव करके रख देता है। वो ब्राउजर में इंफॉर्मेशन को सेव करके रख देता है। तो सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम क्या होगा कि वो वही कैशिंग, वही जो सेव्ड इंफॉर्मेशन है उसी को कैशिंग कहते हैं। वही सेव्ड इंफॉर्मेशन को कैशिंग कहते हैं। वो क्या होगा कि नेक्स्ट टाइम से फिर वही पेज लोड होके आपके पास आ जाएगा, ठीक है? मान लो मान लो पिछली बार आपने लॉगिन किया था, तो आपने बहुत सारा पेज आगे स्क्रॉल नहीं किए थे, लेकिन फिर भी वो सारा इंफॉर्मेशन आ गया था। लेकिन सेकंड टाइम जब आप फिर से आप लोड करेंगे पेज को, तो वो सारा इंफॉर्मेशन आपके पास रहेगा, वो लॉस्ट नहीं होगा, क्योंकि वो आपके पास सिस्टम के कैशे में इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है। यहाँ कैशे कहने का मतलब हुआ ब्राउजर में कुकीज होता है, वो कुकीज आपके इंफॉर्मेशन को सेव करके रखा है, ठीक है? तो यहाँ पर वही बताना चाह रहे हैं कि माइक्रो सर्विसेज भी ये काम करता है। माइक्रो सर्विसेज भी ये काम करता है। वो क्या करता है कि दूसरे एपीआई से इंफॉर्मेशन तो ले लिया, ठीक है? अब बार बार फिर से वो उसको एक बार मतलब फिर से उसको वही इंफॉर्मेशन चाहिए, फिर से उसको वही इंफॉर्मेशन चाहिए। कि तब क्या होगा कि वो फिर से हिट नहीं करेगा वो दूसरे माइक्रो सर्विस को, वो क्योंकि वो अपने पास एक कैशिंग करके इंफॉर्मेशन को सेव करके रखा है। दैट इज कैशिंग एक्चुअली। ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है, कैशेबल। ओके, समझ में आई मेरी बात? व्हाट इज कैशेबल स्टूडेंट्स? टेल मी, कैशिंग क्या हुआ, समझ में आया? यस यस ऋतिक, एनीवन हैविंग प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग? हाँ, गुड गुड संकल्प। ओके, so this is what caching. So we have discussed till now what is synchronous and asynchronous, and अब देखो यहाँ पर क्या है कि माइक्रो सर्विसेज को कहाँ पर यूज करें। अब कोई बोला कि आपको जो है नीतीश कुमार, यू डिडंट अंडरस्टैंड, समझ में नहीं आया क्या आपको?
हेलो नीतीश। यस सर। हाँ, समझ में नहीं आया क्या? सर एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए सर। ये कैशिंग के बारे में। जी सर। अच्छा अच्छा, ठीक 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 ठीक। देखो, कैशिंग क्या होता है कि आपने फेसबुक का मैंने एग्जांपल दिया था कि कैशिंग, आपने लॉगिन किया फेसबुक पर, ठीक है? तो फेसबुक क्या करेगा, वो आपका सारा इंफॉर्मेशन डेटाबेस से पिकअप करके लाएगा, ठीक है? सारा इंफॉर्मेशन फेसबुक से वो उठा के लाएगा डेटाबेस से। अब आप फेसबुक को इस्तेमाल करते करते आधे घंटे आपने उसको यूज नहीं किया। अब क्या हुआ कि आधे घंटे बाद आपने फिर से इस्तेमाल किया यूज करने के लिए, ठीक है? तो नेक्स्ट टाइम जब आप इन यूज करने जाएंगे तो वो दोबारा फेसबुक अपने डेटाबेस को हिट नहीं करेगा, वो दोबारा डेटाबेस के पास नहीं जाएगा। वो सारा इंफॉर्मेशन आपके ब्राउजर के मेमोरी में या फेसबुक के कैशिंग मेमोरी में सेव हो गया आकर के, वो सारा डेटा, ठीक है? तो वो सारा डेटा आकर के सेव हो गया है, दोबारा आप उसको यूज करने जाएंगे तो ऑटोमेटिक सारा डेटा लोड हो जाएगा खुद ब खुद आपके पास। ऑटोमेटिक सारा डेटा खुद ब खुद लोड हो जाएगा, वो दोबारा डेटाबेस को हिट नहीं करेगा। तो यहाँ एक तरह से कॉस्ट सेविंग हो रहा है। कॉस्ट सेविंग कहने का मतलब, आप जितनी बार डेटाबेस को हिट करते हैं उतना ज्यादा मतलब अफेक्ट करता है डेटाबेस, मतलब टाइम बढ़ता है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ता है, या फिर सिस्टम परफॉर्मेंस घटता है, ठीक है? तो नीतीश, ये मैं बता रहा था कि माइक्रो सर्विस में भी यही काम होता है कि मान लो आपने वेदर फोरकास्टिंग का एप्लीकेशन यूज कर लिया टेम्परेचर को यूज करने के लिए, तब क्या होगा कि आपने एक बार तो इस्तेमाल कर लिया, आपको फिर थोड़ी देर बाद फिर से चाहिए उसी टाइम, ठीक है? तो वो क्या करेगा, उसको हिट नहीं करेगा वो बार बार दोबारा जा करके। वो क्या करेगा, जो इन्फॉर्मेशन सेव्ड है अब उसके पास, वही इन्फॉर्मेशन को वो शो कर देगा, ठीक है? लेकिन अगर आपको क्या करना है कि कुछ आपको लग रहा है कि कुछ नया इन्फॉर्मेशन चाहिए, कुछ ओल्ड डेटा आ रहा है, तब क्या करेंगे, आप फिर से जा करके वो वहां पर सर्वर पे हिट करेंगे, ठीक है? मान लो टेम्परेचर हर सेकंड में घटता बढ़ता रहता है, तो आपको नहीं चाहिए, आपको फिर से चाहिए, तो वो वहां पर फिर जाके हिट करेगा डेटाबेस, ठीक है नीतीश? नहीं रहा। हेलो हेलो। यस सर। मेरी बात समझ में आई कि आप फिर कुछ बताओ क्या? समझ गए सर। चलो, नेक्स्ट है आपका, मैं बता रहा था कि माइक्रो सर्विसेज बनाने के लिए मतलब ये नहीं है कि कोई भी प्रोजेक्ट दिया और हम उसको माइक्रो सर्विसेज बनाना स्टार्ट कर दिए। दिस डजंट मीन दैट। if we want and anyone given the requirement and we started developing microservices, so it is very important to understand what is microservices. means when do we use microservices? ऐसा ना कि हम तो प्रोजेक्ट दिया और आपने माइक्रो सर्विसेज बनाना स्टार्ट कर दिया। माइक्रो सर्विस स्टार्ट करने से पहले आपको अजाइल पे एक्सपीरियंस होना पड़ेगा। अजाइल एक इन्वायरमेंट है, डेवऑप्स पे एक्सपीरियंस होना पड़ेगा, ठीक है? आपको पहले पता करना पड़ेगा, आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए माइक्रो सर्विस पे काम कैसे होता है, ये पता होना चाहिए। ऐसा ना कि हम डायरेक्ट इस्तेमाल डेवलप करना शुरू कर दी, ठीक है? और जो टीम हम हायर किए हैं प्रोजेक्ट को डेवलप करने के लिए, क्या उनके पास इनफ इंफॉर्मेशन है कि वो माइक्रो सर्विसेज को समझ सकते हैं कि नहीं समझ सकते हैं, वो माइक्रो सर्विस उनको आता है कि नहीं आता है? सो दिस इज द टाइम टू नो व्हेन द माइक्रो सर्विस शुड बी यूज, ठीक है? और ऐसा ना कि आपका जो जो प्रोडक्ट है जो बनाने जा रहे हैं, वो आपका टेस्टेड है या प्रूवन है कि नहीं है, कि माइक्रो सर्विसेज को वो अडेप्ट भी कर सकता है कि नहीं कर सकता है। सो दिस थिंग मस्ट बी नोन बिफोर माइक्रो सर्विसेज टू बी यूज्ड। तो कुछ एडवांटेज है माइक्रो सर्विसेज का। जो पहले तो पहला एडवांटेज ये है कि ये इंडिपेंडेंटली डिप्लॉयबल है, ठीक है? इंडिपेंडेंटली डिप्लॉयबल का मतलब ये हुआ कि मान लो
कि हम मोनोलिथिक आर्किटेक्चर बना रहे थे, मान लो हम मोनोलिथिक आर्किटेक्चर बना रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कि हम लोगों को डिप्लॉय मतलब समझते हैं आप लोग, बताया था मैं तो पहले कि वो सारे एप्लीकेशन को गो लाइव करना, एप्लीकेशन को गो लाइव करना उसको डिप्लॉय कहते हैं। तो डिप्लॉयमेंट करने के लिए क्या होगा कि हम लोगों को मोनोलिथिक में सारा कोड बेस को जितना एक जगह लिख के रखे हैं सारे को एक ही बार में डिप्लॉय करते हैं क्लाइंट के रिक्वायरमेंट पर। ठीक है, तो माइक्रो सर्विसेज में क्या होता है, ऐसा नहीं होता है कि हम क्या करेंगे कि सारे माइक्रो सर्विसेज को मिला के एक ही जगह डिप्लॉय कर देंगे। दिस इज नॉट द केस, दिस इज नॉट द केस कि माइक्रो सर्विसेज को डिप्लॉय कर देंगे। माइक्रो सर्विसेज में क्या होता है कि हम मान लो कि 10 टीम बनाए थे, 10 टीम, एक टीम काम कर रहा था यूजर सर्विसेज पे, एक टीम काम कर रहा था प्रोडक्ट सर्विसेज पे, एक टीम काम कर रहा था कार्ड सर्विसेज। तो यूजर सर्विसेज वाला बोला कि सर मेरा तो माइक्रो सर्विसेज बन के तैयार हो गया है। मैंने बोला हाँ ठीक है। मैंने पूछा टेस्ट कर लिए, बोला टेस्ट कर लिए। मैंने पूछा कि सारा एरर फ्री है, वहाँ अब क्या करो कि तुम उसको डिप्लॉय कर दो, क्या करो कि सब उसको डिप्लॉय कर दो। उसको क्या करेंगे, यूजर सर्विस को लेके सर्वर पे जाके डिप्लॉय कर देंगे। अब क्या कर सकता है, क्लाइंट उसको यूज कर सकता है। क्लाइंट को अभी बोलेंगे कि कार्ड सर्विसेज या प्रोडक्ट सर्विस अभी बन रहा है, वो अभी बना नहीं, तो उसको बाद में डिप्लॉय करेंगे, उसको बाद में डिप्लॉय करेंगे। सो दिस इज व्हाट द इंडिपेंडेंटली डिप्लॉयबल माइक्रो सर्विस। मोनोलिथिक में क्या था कि सारा को हमको एक ही बार में डिप्लॉय करते थे। यूजर सर्विस हो गया या फिर प्रोडक्ट सर्विस हो गया या कार्ड सर्विस हो गया, सारे को हम लोग एक ही जगह डिप्लॉय करते थे, एक ही बार में डिप्लॉय करते थे। यहाँ माइक्रो सर्विसेज में एक ही बार में डिप्लॉय नहीं करते हैं, वो सबकी अलग अलग मतलब कि अलग अलग रिक्वायरमेंट के हिसाब से डिप्लॉय करते हैं। और स्केलेबल भी मैंने बता चुका था कि यूजर माइक्रो सर्विसेज अपना अलग से उसको इन्हांस करना है तो अलग से स्केल होगा, प्रोडक्ट सर्विस को इन्हांस करना तो वो अलग से स्केल होगा। ठीक है, तो अलग अलग वो हम लोग इन्हांस कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया था मोनोलिथिक में कि यूजर सर्विसेज में कुछ एडिशन इन्फॉर्मेशन ऐड करना है, तो उसके लिए हम लोगों को सारे सर्विसेज पे अफेक्ट पड़ जाता है, सारे पूरे एप्लीकेशन को डाउन करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन माइक्रो सर्विस में क्या करेंगे, सिर्फ यूजर सर्विस को डाउन किए, उसको चेंज किए, इन्हांस किए, उसको डिप्लॉय कर। ठीक है, तो डिफरेंट माइक्रो सर्विसेज कैन बी यूज्ड इंडिविजुअल कंपोनेंट कैन बी। अब ये भी मैं बता चुका था कि डिफरेंट माइक्रो सर्विसेज कैन बी डिफरेंट टेक्नोलॉजीज। हर माइक्रो सर्विस अपना अपना टेक्नोलॉजी यूज कर सकता है, कोई पाइथन यूज करेगा, कोई जावा यूज करेगा, कोई PHP यूज करेगा। ठीक है, इंडिविजुअल कंपोनेंट्स कैन बी रीयूज्ड। इंडिविजुअल कंपोनेंट करने का मतलब कि अलग अलग मॉड्यूल को हम लोग दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि हम बताए थे कि हम वेदर फॉरकास्टिंग का जो एप्लीकेशन है जितनी बार चाहे उतनी बार इस्तेमाल कर सकते हैं, हमको उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, दूसरे माइक्रो सर्विस को जितनी बार चाहे जितने बार इस्तेमाल कर सकते हैं। अब एक लास्ट टॉपिक है, लास्ट ये है इसका बेनिफिट, माइक्रो सर्विसेज इनेबल डेवऑप्स। डेवऑप्स के बारे में कोई सुना है क्या? डेवऑप्स क्या होता है? डेवऑप्स एक नया टूल है, नया टेक्नोलॉजी है, कोई जानता है? अच्छा ठीक है, अगर टाइम मिला तो आगे थोड़ा सा इसको डिस्कस कर देंगे डेवऑप्स के बारे में क्या होता है। ये हो गया, बेनिफिट हो गया का जो है। इसका डिसएडवांटेज भी है, ऐसा नहीं कि माइक्रो सर्विसेज जो है सिर्फ फायदे के लिए ही बना। ठीक है, उसका डिसएडवांटेज भी है। एक चीज आप लोग हमेशा याद रखिएगा कि जब माइक्रो सर्विसेज का बनाने के लिए आपको मिलेगा तो पहले देखना पड़ेगा, एनालाइज करना पड़ता है वो प्रोजेक्ट को, कि हम लोग वाकई ये प्रोजेक्ट को हम लोग माइक्रो सर्विस पे ले जा सकते हैं कि नहीं ले जा सकते। मान लो एक छोटा मोटा भी प्रोजेक्ट बनाना है तो हम छोटा मोटा प्रोजेक्ट को माइक्रो सर्विस पे नहीं बना सकते हैं। हाँ, आप कॉलेज के लेवल पे
समझने के लिए बना सकते हैं कि माइक्रो सर्विसेज क्या होता है, लेकिन माइक्रो सर्विसेज को डेवलप करने के लिए, लेकिन हम लोग छोटे मोटे प्रोजेक्ट के लिए नहीं इस्तेमाल करें। मान लो हमको एक छोटा सा अ, एक दुकान का, एक शॉप का वेबसाइट बनाना है, तो वहां पर हम लोग ऐसा नहीं कि हम लोग माइक्रो सर्विस लेके चलेंगे, ठीक है, क्योंकि वहां पर तो सिंपल एक दो तीन मॉड्यूल ही होगा। एक तो इंफॉर्मेशन होगा जो शॉप का होगा, और एक पेमेंट का होगा, ज़्यादा से ज़्यादा दो तीन इन्फॉर्मेशन होगा। तो वहां पर हम लोग माइक्रो सर्विसेज का क्या बोलते हैं या यूज नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप लोग कॉलेज पर्पस पे कोई प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, छोटा छोटा मॉड्यूल लेके एक दूसरे को आपस में कम्युनिकेट करा के हम लोग माइक्रो सर्विसेज को यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका डिसएडवांटेज ये है कि मान लो कि एक बहुत बड़ा कॉरपोरेट है, उसने दे दिया बनाने के लिए माइक्रो सर्विसेज, तो जैसे कि मैं अपने प्रोजेक्ट का एग्जांपल दे रहा हूँ जहाँ मैंने काम किया है, लगभग 200 माइक्रो सर्विसेज थे। 200, एक नहीं। प्रोजेक्ट नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया का प्रोजेक्ट था, तो उसमें 200 माइक्रो सर्विसेज, इतने सारे माइक्रो सर्विसेज थे कि उनको जो है मैनेज करना डिफिकल्ट होता था। ठीक है, कैसे मतलब कि अलग अलग टीम को हैंडल करें, कैसे अलग अलग टीम को अलग अलग मॉड्यूल को मतलब मेंटेन करके रखें, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है माइक्रो सर्विसेज को हैंडल करना। 100 है तो कोई दिक्कत नहीं है, 50-100 है, लेकिन 200-300 माइक्रो सर्विसेज को मैनेज करना काफी मतलब कि चैलेंज वाला काम, ठीक है। और माइक्रो सर्विसेज को जो कम्युनिकेशन होता है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, इतना आसान नहीं होता है कि आप एक माइक्रो सर्विसेज लिए, दूसरा लिए और कम्युनिकेट करा दिए, सिंपल, दैट इज नॉट द थिंग। You have to use lots of things there, like REST template, fin client. These are things are there. You have must know about it. Okay. तो क्या होता है कि बहुत सारे माइक्रो सर्विसेज जब बन जाते हैं तो फेलियर का चांस भी बढ़ जाता है, फेलियर का चांस भी बढ़ जाता है। अब कौन माइक्रो सर्विसेज किससे जाके फेल कर गया, तो इसको थोड़ा आइडेंटिफाई करना मुश्किल होता है, ठीक है। तो 50 माइक्रो सर्विसेज से पता चल जाएगा कि ये नहीं काम कर रहा है, इसको हम लोग ठीक कर सकते हैं। तो दिस इज द disadvantage of microservices. Or the last disadvantage that the developer needs to solve the problems such as network latency and load balancing. अब क्या होगा कि बहुत सारे माइक्रो सर्विसेज अलग अलग सर्वर पे डिप्लॉयड है, ठीक है। तो हम लोग एक सर्वर मान लो फेल कर गया, तो क्या होगा कि उसको चलाने के लिए दूसरा मतलब कि वो फेल नहीं होना चाहिए। तो अलग अलग मान लो वो सर्वर फेल कर गया तो एक और सर्वर वहां पे लाके हम लोग उसका कॉपी बना के रखेंगे, तो ताकि माइक्रो सर्विसेज फेल नहीं है, उसको लोड बैलेंसिंग कहते हैं। तो इन सबको जो है ना हैंडल करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि हम माइक्रो सर्विसेज बना दिए आसानी से वो काम हो जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिक्स था मतलब माइक्रो सर्विसेज के बारे में, जो मतलब अभी ट्रेंडिंग में है, आपको ये जानना चाहिए। क्योंकि अभी जो बहुत सारी कंपनियां हैं जहां आप भी आगे जाके काम करेंगे, तो माइक्रो सर्विस पे पक्का काम मिलने वाला है आपको, ठीक है। तो आपको इसके बारे में पहले से अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि माइक्रो सर्विसेज क्या होता है, ठीक है। तो माइक्रो सर्विसेज को जानने के लिए थोड़ा सा आप खुद से भी एनालाइज करेंगे, पढ़ेंगे नेट पे, गूगल पे, फिर आगे जाके प्रोजेक्ट थोड़ा सा अपना कॉलेज में चाहे तो बना सकते हैं। अभी जो मेरे अंडरस्टैंडिंग में है, जहाँ तक माइक्रो सर्विसेज जहाँ ज़्यादा यूज हो रहा है, वो किस टेक्नोलॉजी पे, वो इस जावा और स्प्रिंग बूट का बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है माइक्रो सर्विसेज में। स्प्रिंग बूट के बारे में कोई सुना है क्या, एनीवन? स्प्रिंग बूट पे कोई काम किया है, कोई जानता हो स्प्रिंग बूट? टीम स्टूडेंट्स, स्प्रिंग बूट के बारे में या स्प्रिंग के बारे में? टेल मी। नो वन?
सो स्प्रिंग बूट जो है अभी बहुत ही ट्रेंडिंग है, एक फ्रेमवर्क है स्प्रिंग बूट। ठीक है, जब आप लोग जावा पे प्रोजेक्ट बनाएंगे तो कोर जावा पढ़ने के बाद वो आगे का टेक्नोलॉजी है स्प्रिंग, पहले स्प्रिंग जानना पड़ेगा फिर स्प्रिंग बूट जानना पड़ेगा। सो दीज थिंग्स यू मस्ट हैव नॉलेज prior to going into the industry. Okay, so this is the basic of microservices what I discussed. So team, anyone having any questions on microservices, please let me know. किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है माइक्रोसर्विस से और कुछ जानना चाहते हैं? एनीवन? नीतीश, ऋतिक, हर्ष? अच्छा, डेवऑप्स, ठीक है ठीक है, डेवऑप्स के बारे में बता देते हैं। करेक्ट, ठीक है, डेवऑप्स को मैंने इसको ऐड किया था इसमें डेवऑप्स के बारे में कि ये भी एक बहुत ही डिमांडिंग टेक्नोलॉजी है, डेटा साइंस, क्लाउड कंप्यूटिंग और डेवऑप्स। ठीक है, तो डेवऑप्स के बारे में मैं थोड़ा सा बताऊंगा, ज़्यादा नहीं। का एक इमेज है, वो इमेज को आपको समझना पड़ेगा। इसका जो डेवऑप्स का जो इमेज है, ये इमेज है, देखो ये इमेज क्या है, ये देखो ये ये एक इन्फिनिटी का साइन दिख रहा है, ये डेवऑप्स है। तो इसके बारे में थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे। ठीक है, डेवऑप्स क्या होता है? तो डेवऑप्स दो टर्म मिलके बना है, डेव और ऑप्स। डेव मतलब हो गया डेवलपमेंट और ऑप्स मतलब हो गया ऑपरेशन। ठीक है, तो डेवलपमेंट करने के लिए हम लोगों को कोई प्रोजेक्ट को हम लोगों को पहले क्या करना पड़ता है, प्लान करना पड़ता है। कि हम लोग प्लान मतलब उसका एसआरएस तैयार करना पड़ता है, उसका रिक्वायरमेंट लेना पड़ता है, गैदर करना पड़ता है। तो डेवलपमेंट में यही होता है। डेवलपमेंट में क्या होता है, पहले प्लान करेंगे कि क्या हम बनाने जा रहे हैं, क्या सॉफ्टवेयर बनाने जा रहे हैं, फिर उसको हम लोग कोड करते हैं। मतलब बेसिक बता रहे हैं, उसको कोड करते हैं, मतलब इस सॉफ्टवेयर का लाइफ साइकिल कह सकते हैं इसको। फिर उसको हम लोग क्या करते हैं, बिल्ड करते हैं। बिल्ड मतलब वही डिप्लॉय करते हैं, मतलब प्रोजेक्ट बन गया, कोड तैयार हो गया, उसको हम लोग क्या करेंगे, जाके डिप्लॉय कर देंगे सर्वर पे। ठीक है, उसके बाद हम लोग टेस्ट करते हैं। टेस्ट में बहुत सारा टेस्टिंग हो सकता है। तो जो क्लाइंट है वहाँ पे यूजर यूजर टेस्ट करेगा कि क्या सही से चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ये एक डेवलपमेंट टीम हो गई, ये एक डेवलपमेंट टीम हो गई। पहले पहले क्या था, डेवलपमेंट टीम अलग था और फिर एक ऑपरेशन टीम होती है। ऑपरेशन टीम होती है। ऑपरेशन टीम क्या करता है, ये मैनेज करता है किसको, जो मेरा एप्लीकेशन डिप्लॉयड है सर्वर पे। मैनेज करने का मतलब वो ठीक ठाक चल रहा है कि नहीं चल रहा है, या फिर वो सर्वर को एप्लीकेशन को डिप्लॉय करती है, डिप्लॉय द एप्लीकेशन। ठीक है, वो क्या करती है, एप्लीकेशन को डिप्लॉय करती है, मॉनिटर करती है। मॉनिटर मतलब उसको कहाँ पर क्या दिक्कत आ रहा है, नहीं आ रहा, वो ऑपरेशन टीम करती है। जैसे कि आप लोग सपोर्ट टीम के बारे में सुने होंगे, जब कोई आईटी कंपनी में दो तरह की टीम होती है, एक आईटी की डेवलपमेंट टीम होती है, एक सपोर्ट टीम होती है। डेवलपमेंट टीम क्या होती है कि वो डेवलप कर देती है, चली जाती है। अब आता है बारी किसका, सपोर्ट टीम का। सपोर्ट टीम वहां पे रहता है कि कहीं पर कोई दिक्कत तो नहीं आ रहा है, एप्लीकेशन ठीक ठाक चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अगर प्रॉब्लम आता है तो सपोर्ट टीम क्या करता है, उसको अप्रोच करता है डेवलपमेंट टीम को कि देखो यहाँ पे ये प्रॉब्लम आ रहा है। तो डेवलपमेंट टीम क्या करेगा, फिर कोड को सही करके वो देगा उसको। ये ऑपरेशन टीम है। दो तरह की टीम होती है, ये दोनों अलग अलग काम करते हैं। ये दोनों अलग अलग पहले काम करते थे, पहले अलग अलग काम करते थे। अब इसका जो हम बहुत
बेहतरीन एग्जांपल है डेवऑप्स का, वो हम थोड़ा बताने जा रहे हैं। क्या होता है कि मान लो कि डेवलपमेंट टीम ने अपना एक बिल्ड बनाया, बिल्ड मतलब कि एक जार फाइल या EAR फाइल बना के दे दिया। बिल्ड क्या बनाया, जार फाइल या फिर उसको वॉर फाइल कहे हो, या फिर तुम्हारा जिस तरह का डेवलपमेंट फाइल है, बना करके किसको दे दिया, ऑपरेशन टीम को, कि लो अब इसको डिप्लॉय करो। ठीक है, अब ऑपरेशन टीम इसको डिप्लॉय करने जाएगा कि लो अब इसको ऑपरेशन सर्वर पे जाके रख दो ताकि क्लाइंट इसको इस्तेमाल कर सके। अब वो जाके सर्वर पे रखा, अब बोल रहा है ऑपरेशन टीम की नहीं हो रहा है, यहाँ प्रॉब्लम है, आपके वॉर फाइल में क्या है, प्रॉब्लम है। वॉर फाइल में प्रॉब्लम मतलब क्या हुआ, वो ठीक से काम नहीं कर रहा है, वो डिप्लॉय नहीं हो रहा है। तो डेवलपमेंट टीम बोला कि हम तो ठीक ठाक बना के दिए थे, तुम गलती कर दी, तुम्हारे तरफ से प्रॉब्लम है। मैंने ठीक से बना के, डिप्लॉय नहीं हो रहा है इसका मतलब ऑपरेशन टीम की गलती है। क्या बोल रहे हैं, डिप्लॉय नहीं हो रहा है इसका मतलब ऑपरेशन टीम की गलती है। तो अब यहाँ पर दोनों में कन्फ्लिक्शन हो गया, ये बोल रहा है कि मेरे तरफ से प्रॉब्लम नहीं है, ये बोल रहा है कि मेरे तरफ से प्रॉब्लम नहीं है। अब प्रॉब्लम कहाँ है भाई, अब प्रॉब्लम तो कहीं ना कहीं तो है, प्रॉब्लम तो कहीं ना कहीं तो है। तो दैट इज व्हाट डेवऑप्स टीम, डेवऑप्स टीम क्या करती है, ये दोनों को हैंडल करती है। डेवऑप्स क्या होती है, इसको दोनों का नॉलेज होना चाहिए, डेवलपमेंट का भी नॉलेज होना चाहिए और ऑपरेशन के भी नॉलेज होना चाहिए। डेवलपमेंट का नॉलेज मतलब ये नहीं कि वो बैठ के डेवलप किया है, सपोर्ट का मतलब ये नहीं कि वो बैठ करके उस सपोर्ट टीम में काम किया है, मतलब कि वो दोनों के बीच का रास्ता निकालेगा, वो दोनों जगह, जैसे होता है ना कोर्ट में एक मेडिएटर होता है, जज और इसके बीच में, ठीक है, तो वैसी तरह से ये वकील होता है, वकील की तरह कह सकते हैं कि लॉयर की तरह। डेवऑप्स क्या करें, एक लॉयर की तरह यहाँ पर है कि वो बताएगा कि हाँ यहाँ पर ये प्रॉब्लम है जिसके वजह से प्रॉब्लम हो रही है, या तो डेवलपमेंट टीम के पास प्रॉब्लम है या तो ऑपरेशन टीम के पास प्रॉब्लम। पहले क्या हो रहा था, दोनों में से कोई मानने को तैयार ही नहीं था कि कहाँ प्रॉब्लम। तो यही काम है डेवऑप्स टीम का, डेवऑप्स टीम यही करती है। ये पूरा जो काम हो रहा था पहले, वो सारा काम वो डेवऑप्स टीम क्या करेगी, हैंडल करेगी, मैनेज करेगी। अब मान लो कि डेवऑप्स टीम भेजा ऑप्स टीम को, वो सक्सेसफुली डिप्लॉय हो गया, तब यहाँ डेवऑप्स टीम आराम से बैठा है, कोई काम नहीं है, रॉयल जॉब है। डेवऑप्स का जो जॉब है एकदम रॉयल जॉब है, बहुत अच्छा खासा पैकेज पे ये लोग उठाते हैं मतलब स्टूडेंट को। ठीक है, मतलब मोर देन 10 lakhs दे हायर द स्टूडेंट्स। ओके, तो ये क्या होगा, ये DevOps set of practice and tools that combine software development and IT operations support in the system development life cycle. In some simple terms, it aims to make building, testing, and releasing software faster and more reliable. क्या करेगा कि सॉफ्टवेयर को जल्दी जल्दी डिप्लॉय रिलीज कर देगा। ठीक है, इट इज वन ऑफ द हाईएस्ट पेइंग रिमोट जॉब्स, रिमोट जॉब भी है, समझे, आपका ये ऑन साइट में काफी जॉब है इसका, डेवऑप्स का। तो मेरा पर्सनल एडवाइस होगा कि आप जो है डेवलपमेंट भी समझिए और ऑपरेशन भी समझिए। ठीक है, और इसका एक कोर्स आता है उडमी पे या फिर कहीं भी, आप यूट्यूब पे भी कर सकते हैं। बेस्ट तो हम सजेस्ट करेंगे कि उडमी पे इस कोर्स को करिए आपके फ्यूचर के लिए। ठीक है, सो वेरी डिमांडिंग राइट नाउ डेवऑप्स। सो एनी मोर क्वेश्चंस, anything in problem in understanding DevOps? Ritik, Harsh, anything you want to ask on DevOps? Yes, tell me. Good, good, good to know. So this is all about whatever we have discussed today. So I will wind up all these microservice architecture, whatever we discussed. Hope you will go and learn on yourself, okay, and be with the technology in the coming time. Okay.
So that's all from my. Yeah, ma'am. Am I audible? Sir, Yes, sir, am you I are. audible? Yes, yes, Gopal. Okay, dear students, you must have been enlightened with this technical session. Distinguished IT experts, faculty members, and my dear students, good afternoon. On behalf of Good afternoon, Honorable, sir. good afternoon. On behalf of Honorable Director, Professor R.K. Singh sir, and the whole ISM fraternity, I, Dr. DNC, would like to express our heartfelt gratitude and deepest appreciation to an extraordinary individual, Mr. Tanveer Alam, who has graced us with his benign presence and enlightened us with his profound knowledge and expertise in the field of microservices technology. Mr. Tanveer Alam's talk is nothing short of exceptional. His ability to break down complex concepts and present them in a clear and concise manner truly made the topic accessible to these novice students in this direction. The depth of his understanding and his ability to convey his ideas with clarity and enthusiasm were truly remarkable. Through his talk, Mr. Tanveer Alam not only provided us with a comprehensive overview of microservices technology, but also highlighted his significance in the current technological landscape. His in-depth knowledge, coupled with, as you perceived, the real world examples allowed us to grasp the immense potential of microservices and how they can revolutionize the way we develop and deploy software applications, which you are taught in classrooms. Furthermore, Mr. Tanveer Alam's expertise was evident in the way he engaged with the audience, patiently answering our questions and addressing our concerns consistently. His willingness to share his wisdom and engage in meaningful discussions demonstrated his commitment, don't you think so? Yes, really, his commitment to fostering knowledge, sharing, and growth within the technological community. We'd like to extend our gratitude to Honorable Director Sir for his prudent guidance. Convener of this event, as you all know, our beloved domain leader of the Department of Information Technology, Mrs. Jaya Kumari, and the organizing committee for their meticulous planning and execution of this event. Lastly, but certainly not least, I would like to express our gratitude to all the faculty members, students, and staff who have directly and actively participated in this event. Your presence and engagement have made this occasion even more meaningful and have contributed to the overall success of the expert talk. Thank you all once again, and let's carry forward the spirit of learning and innovations that Mr. Tanveer Alam has instilled in us today. Thank you, thanks a lot. Thank you, sir.
Thank you, everyone. Sujit sir, I would like to request you to just stop the session. Yes. Thank you, ma'am. Okay.